Hello students, welcome to unit number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. Our today's session is lecture number 26. As we know that in last sessions we completed preparations of carboxylic acids. So after the completions of these preparations of carboxylic acid, in your textbook there is a example 12.5. So now we solve this example 12.5 with a different angles. So what they given in your example 12.5, write chemical reactions to effect the following transformations. So here there is a word is called as a transformation, or sometimes called as a conversions to. It's a very good important, or it's a very important topic for the aspirants of JEE as well as NEET, because in such a type of competitive examinations they ask such a type of conversions or transformations. So either they give a X arrow, Y arrow, Z, whatever, and they give what is the structure of X, Y, Z respectively, or in sometimes they gives X arrow, then give the structure and then arrow, then give the Z, and you have to find out the Y. In some questions they give the conditions, because the conditions is given with the help of such a type of X, Y and Z. So you have to complete the conditions. So here in your textbook different types of 4 conversions are given. So first conversions we start with a butanol. What is the meaning of butanol? Means CH3, CH2, 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 OH. We know that it's a butane 1-ol, and butane 1-ol, and what we have to prepare or convert, so convert into butanoic acid. So first you have to draw the structure of butanoic acid. We know that it's a butanoic acid. Look, this is alcohol and carboxylic acid. It's a primary alcohol, carboxylic acid. Number of carbon in primary alcohol 4, same number that we have to observe in carboxylic acid, means there is no change in carbon. So it means that we can't use a Grignard reagent as well as KCl. Okay. So it's a simple oxidations of a primary alcohol to carboxylic acid with the help of strong oxidizing agent. So we know that we have either a neutral KMnO4 or acidic KMnO4 or basic KMnO4 or acidic K2Cr2O7 or CrO3H2SO4, which is called as a Jones reagent. So whatever the reagent that we have to use, either you have to use a neutral KMnO4 or acidic KMnO4 or acidic K2Cr2O7 or whatever. In your textbook they given CrO3H2SO4. It doesn't mean that these reactions which can be transformed with only with the help of Jones reagent. No, it's not true, right? But CrO3H2SO4, okay. So in our prior sessions we know that this method is quite effective or quite advantageous compared to this too, because this gives the some amount of esters too, while in the case of this KMnO for acidic or basic or neutral, so we convert butane 1 or 2 into butanoic acid. Okay, fine. Now next, number 2. So what they given into number 2, so benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid. Benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid. So first we have to draw the structure of benzyl alcohol. So we know that this is benzyl alcohol, see, okay. Now this benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid. The structure of phenyl ethanoic acid means here C6H5CH2. So number of carbon is 6 plus 1, 7. While in the case of phenyl ethanoic acid 6 plus 2 means 8, means we have to increase 1. So definitely we transform or we convert this reaction in such a way that first it's converted into substitutions of hydroxyl with bromide. So I have to convert into halo compound, because with the help of this halo there is a way to increase 1 carbon with the help of KCl, right?
सो KCN के लिए मुझे यहाँ पे हेलो पे जाना पड़ेगा और हेलो के लिए मैंने PBr3 यूज किया हुआ है. सो वेर योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन. अच्छा, यहाँ पे कई बार HBr भी आप यूज कर सकते हैं, HBr भी यूज कर सकते हैं. सो द कंपाउंड इज बेंजाइल ब्रोमाइड. Now this benzyl bromide, now the cyanation of benzyl bromide, it's a one type of a SN1 reactions, right? Because it's a nucleophilic substitution reactions. So in this process, we get a C6H5CH2CN. Okay, the name of this compound is benzyl cyanide. So you see that here C6H5 plus CH2, here C6H5 CH2, so they increase one carbon. Okay, so minus KBr is released, and now it's a simple hydrolysis, right? Hydrolysis, okay, so which gives what? C6H5 CH2 COOH. So the name of this compound is phenyl ethanoic acid. Phenyl ethanoic acid. So benzyl alcohol to benzyl bromide to benzyl cyanide, and then benzyl cyanide to phenyl ethanoic acid. So this is such a type of conversions, right? Now we move to the another point is number 3. So what they given in number 3? They given 3-nitrobromobenzene. So 3-nitrobromobenzene, or sometimes 1-bromo 3-nitrobenzene, both are same, right? So the name of this compound is 3-nitrobromobenzene. Okay, which is converted into what? So 3-nitrobenzoic acid. So here there is no change in nitro, but you have to convert this bromine into COOH. Okay, so it means that you have to increase one carbon too. So definitely we have a two different way, but our way in this case, first we convert into Grignard. We have to add a magnesium, right, in presence of dry ether. So first we prepared such a type of Grignard reagent. Okay, after this preparations of this Grignard reagent, now we pass a carbon dioxide or dry ice in the form of dry ice. So what we get in this compound, so it is look like this. Okay, fine. Here C double bond O Mg Br, but there is no change in nitro. And further, now this hydrolyze, acidic hydrolyze, so it's converted into what? So it's converted into our respective compound is COOH and NO2, and there is a release of MgOH Br. So the name of this compound is sorry, this nitro, which can be located at here, okay, NO2. So 3-nitrobenzoic acid. Fine, simple. Next one, number 4. So in number 4 they give a 4-methyl acetophenone. So first we have to draw the structure of 4-methyl acetophenone. So 4-methyl acetophenone, which can be given like that. Once again, this is 4-methyl acetophenone. So now this 4-methyl acetophenone, when it's oxidized, we know that we have a strong oxidizing agent. So this strong oxidizing agent, they oxidize alkyl group as well as ketone too. So first is converted into both group. First this group is converted into COOH, and same way COOH, but KOH is a basic in nature, so they form a salt. So the name of this compound is dipotassium benzene 1,4-dicarboxylate. Okay, then after we have to acidified. So we acidified with the help of H2SO4, dilute H2SO4. So it's converted into K2SO4.
and the product that we have to get is like that. This is COOH and COOH. We know that the name of this compound is benzene 1,4-dicarboxylic acid. Other name is also, we know that it's a terphthalic acid. Terphthalic acid 2. Right, this is the other name. Okay, fine. So next number, conversions number 5. So conversions number 5 is given like that, cyclohexene. What they given? Cyclohexene. And we have to convert the cyclohexene into what? So into like that, COOH and COOH. So this is nothing, but we know that the name of this compound is hexane 1,6-dioic acid, or other name is adipic acid. Simply it's a one, because the what in this case, देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ है, ये अल्कीन मैंने आपको बोला था एक बार, जब भी मैंने प्रिपरेशंस डाली थी ना, तभी मैंने बोला था कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन में मैंने अल्कीन इसलिए डाला था क्योंकि यहाँ पे बुक में इनर पोर्शंस में नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे उसने कन्वर्जन्स डाला हुआ है. सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस अल्कीन. सो अल्कीन का हम ऑक्सीडेशन सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ से in the presence of KMnO4 H2SO4 और KMnO4 KOH. ओके फाइन. सो वो कहाँ पे चला जाएगा? सिंपल है, यहाँ पे अल्कीन का मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया है. ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें दिया हुआ है ब्यूटेनॉल. दिस इज CH3 CH2 CH2 CHO. सिंपल है, right? It's a butanol, and I have to convert into what? So CH3 CH2 CH2 COOH. This is butanoic acid. I think so. There is no change in carbon, right? 4. So same number of carbon, but I have to convert this aldehyde into carboxylic acid. So it's required a mild oxidizing agent, and we know that we have a mild oxidizing agent like AgNH3 twice OH. So it's a one type of Tollens reagent. Okay, so either you have to use a Tollens reagent or Fehling solution or Benedict solution or bromine water, whatever the oxidizing agent that you have to use in this case. So all these different types of 6 compounds are in your problem number 12.5. Now the next point is given is like that. नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या यहाँ पे लिया हुआ है, आप देखिए उसका भी जो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया अभी आपका जो एनसीईआरटी में है, तो वहां पे आपको फिर से इंटेक्स क्वेश्चंस दिया हुआ है. देखिए आपका एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चंस है आप फिर से देख लीजिए. एनसीईआरटी इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यहाँ पे है, और उसका है 12.7. उसमें आपको 1 2 3 4 4 कंपाउंड दिए हुए हैं. उसने बताया सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड. हमें बेंजोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, हमें फर्स्ट वन कंपाउंड क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे मुझे दिया गया है CH2 CH3. सो वी नो दैट दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एन इथाइल बेंजीन, यानी अल्काइल बेंजीन है. और अल्काइल बेंजीन का तो हमें मालूम ही है, जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 KOH से कराएंगे तो ये जैसी भी लंबी अल्काइल ब्रांच हो, कुछ भी हो, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन की वजह से वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? COOH में. लेकिन COOH तो एसिडिक है, फिर KOH बेस है, तो उसका सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे. तो हमें क्या मिलेगा पहले? तो क्या पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा. Now this potassium benzoate is further hydrolyzed. So it's converted into what? क्योंकि यहाँ पे हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो बेंजोइक एसिड में चला जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही. ऐसा ही हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, तो क्या दूसरा हमें दिया गया है एसीटोफिनोन दिया हुआ है. एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए. राइट, दिस इज एसीटोफिनोन. ओके,
ये एसिटोफिनोल हमें जो दिया हुआ है तो हमें वही तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कीटोन है, तो कीटोन के लिए तो हमें हायर मींस एग्रेसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4KOH. सो दिस KMnO4KOH ऑक्सीडाइज योर कीटोन ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. लेकिन फिर से हमें मालूम है यहाँ पे KOH की प्रेजेंस से यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट भी बन जाएगा, और ये पोटेशियम बेंजोएट में जो K प्लस है वो बेसिक है, तो हम इसका न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे एसिड की तरह से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड यहाँ से यहाँ पे जाने का एक और भी रास्ता है, लेकिन ये सबको पता नहीं होता है, लेकिन मैं तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि उसका जो रास्ता है, दूसरा जो रास्ता है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आयोडीन NaOH की भी वजह से भी चल सकता है. दिस इज कॉल्ड एज एन आयोडोफोम टेस्ट. आयोडोफोम टेस्ट से भी हम यहाँ पे जा सकते हैं. फिर यहाँ तो वही रास्ता है. नाउ द थर्ड कन्वर्शन इज लाइक दैट. सो वी स्टार्ट्स विद ब्रोमोबेंजीन, राइट? ब्रोमोबेंजीन. और ब्रोमोबेंजीन में से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, क्योंकि सभी में हमें बेंजोइक एसिड है, यानी यहाँ पे मुझे COOH लाना है. तो COOH लाने के लिए मैं उसका ग्रिग्नार्ड फर्स्ट, पहले मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया. देखिए आप यहाँ पे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे उसका प्रिपेयर कर लिया है. मुझे मालूम है इसका जो नाम है हम क्या बताएंगे, फिनाइल है, मैग्नीशियम है और ब्रोमाइड है. अभी इसमें से हम क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड. ड्राई आइस का फॉर्म में जो भी हो, हमें पता है ये कार्बेनाइन है, वो यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, और ये पाई बॉन्ड है वो शिफ्टिंग हो जाएगा टूवर्ड्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. फाइन. So I get such a type of intermediate product or addition product, OMGBr. फिर मैं उसका क्या कराऊंगा, फिर मैं उसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा. तो हाइड्रोलाइसिस की वजह से वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और बाकी का जो हिस्सा है MgOHBr वो यहाँ से निकल जाएगा. सो वी गेट अ बेंजोइक एसिड. ठीक है, बिल्कुल सही. फिर हम नया जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने फोर्थ वन दिया हुआ है, वो जो मुझे दिया हुआ है वो है स्टाइरिन. मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे, स्टाइरिन. और इसका एक और नाम भी है, उसको हम बोल रहे हैं फिनाइल इथीन की तरह से भी बोल रहे हैं, और उसको हम बोल रहे हैं स्टाइरिन 2. स्टाइरिन की साथ भी हम इसका यहाँ प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. जो मुझे स्टाइरिन दिया हुआ है, अभी उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्कीन है, देखिए अल्कीन है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन ऑलवेज गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4KOH. So first is converted into what? So first is converted into, यहाँ पे ये चला जाएगा COO माइनस, यहाँ पे H बन गया था, लेकिन मुझे मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर एंड योर KOH is a strong base, so they form a such a type of basic salt, and this basic salt name is potassium benzoate. And now I have to remove only this potassium with the help of, okay, यहाँ पे एक और भी बन गया, देखिए HCOO माइनस K भी बन गया है. ये पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि इसका जो हिस्सा है वो पोटेशियम फॉर्मेट में चला गया है. ठीक है, फिर मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा. तो हाइड्रोलिसिस की वजह से मुझे जो ये कंपाउंड मिल रहा है वो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही. तो इस तरह से हम यहाँ पे जो कंपाउंड बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं. तो ये जो पोर्शंस है अभी जो मैंने आपकी जो, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, इंडेक्स का जो पोर्शंस है वो जो सोल्ड और अनसोल्ड वो साथ में ही ले जा रहा हूँ. हमारा जो चैप्टर खत्म होगा तभी मैं आपको साथ वो जो एक्सरसाइज है और बाद में एग्जाम्पलर की हम बात करेंगे. ठीक है, ओके फाइन. अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेरा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है मेरा नेक्स्ट पोर्शन है, और वो मुझे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमें मालूम है जब भी प्रिपरेशंस खत्म हो जाती है तो उसके बाद में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है.
और हर बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे कोई स्मेल की बात होती है, सॉल्युबिलिटी की बात होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा वही डिस्कस है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम दिखा रहे हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं अपनी तरह से यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट है तो मैं यहाँ पे स्मेल के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट स्मेल, ओके। सो द फर्स्ट थ्री एलिफैटिक एसिड्स, जैसे हमें मालूम है क्या होता है, HCOOH है, दूसरा CH3COOH है, और तीसरा क्या है मेरे पास CH3CH2COOH है, राइट। दे आर कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कलर ही नहीं होता है, राइट। फिर कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स है, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स है, हाँ लिक्विड्स। ये मैं तो जैसे आपने कई बार जो एसिटिक एसिड विनेगर का तो बहुत खट्टी बास इसकी आती है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। उसके मैं द नेक्स्ट 6 एसिड्स, अभी उसके बाद के जो 6 एसिड्स है, जैसे मैं C4 से C9 की बात कर रहा हूं, राइट। आर also colorless oily liquids with somewhat unpleasant smell, ठीक है। उसकी भी थोड़ी अच्छी तरह से जो इसकी बास कुछ होती, जैसे मैंने एक बार आपको बताया था, ये C4 वाला है, ब्यूटीरिक एसिड है, ठीक है। तो दे हैविंग अ स्मेल ऑफ रैंसिड बटर, जो बटर बिल्कुल बिगड़ जाता है तो किसी इसमें बदबू आती है, तो उस तरह सा वो जो है वो यहाँ पे मुझे इसकी स्मेल आ रही है, ओके। नाउ द 10 or more carbon atoms, okay, the acids with 10 or more carbon atoms are, कैसे है वो, तो क्या वो भी कलरलेस है, सभी कलरलेस ही है, राइट। वैक्सी solids with no distinct smell, ड्यू टू व्हाट, क्योंकि क्यों स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि उसके ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी, वो लो वॉलेटिलिटी की वजह से वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और दूसरा एक पॉइंट और भी मैं यहां पे डाल देता हूं, मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक एसिड्स exist as colorless solids with no distinct smell। तो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे सभी दिखाया हुआ है वो स्मेल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अभी मैं आपका अपना जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेना चाहता हूं वो है सॉल्युबिलिटी। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड having up to 4 carbon atoms are miscible in water। up to 4 कार्बन था तो वो पानी में वो घुल जाता है, मिक्स हो जाता है
क्यों मिक्स हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विथ वाटर. राइट. इसमें हम ये भी बात करना चाहते हैं, द सॉल्युबिलिटी decreases as the number of carbon atoms increases. जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे यानी मोलेकुलर वेट बढ़ता जाएगा तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. जैसा पेंटेनोइक एसिड है और हेक्सेनोइक एसिड है, राइट, दे आर ओनली स्लाइटली soluble in water and the higher carboxylic acids are practically insoluble in water. देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरे पास C5 वाला है यानी या C6 वाला मेरे पास एसिड है जिसको हम वेलरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड भी बोलते हैं, राइट, आर ओनली slightly soluble in water. But the higher carboxylic acids, तो उसमें क्या होता है, जिसका R पोर्शंस बढ़ रहा है, R यानी हाइड्रोफोबिक पोर्शंस बढ़ रहा है और पानी तो हाइड्रोफिलिक है तो उसके साथ वो जुड़ेगा नहीं. ओके, सो बेंजोइक एसिड इज द, ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है. ठीक है, बेंजोइक एसिड है वो सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है. जैसे मेरे पास C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, राइट, विच इज nearly insoluble in cold water because non-polar hydrocarbon part is outweighed the effect of the polar COOH, right? So this is nearly but in hot water which is sufficiently soluble. Okay, fine. So in nutshell we says that all the carboxylic acid COOH are soluble in less polar organic solvents such as benzene, ether, alcohol, right? Benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. ठीक है, फाइन. अभी जो तीसरा वाला पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं वो है बॉइलिंग पॉइंट्स का. बॉइलिंग पॉइंट्स, the boiling points of carboxylic acids are much higher than those of the hydrocarbons and somewhat higher than those of the aldehyde, ketones, even alcohols of a comparable molecular masses. इसमें क्या है देखिए आप, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा उसका डेमो दिखा रहा हूँ. जैसे मेरे पास है CH3COOH, सो एसिटिक एसिड है, इसका मोलेकुलर वेट कितना है, 60 है. फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पास है CH3CH2CH2OH यानी प्रोपेनॉल है, उसका भी कितना है क्योंकि मोलिकुलर मास मुझे नियर अबाउट चाहिए, राइट. फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ CH3CH2CHO, तो उसका क्या है, तो उसका 58 है. जैसे मेरे पास कीटोन है CH3COCH3, तो उसका भी क्या है, 58 है. जैसे मेरे पास ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, मैं नॉर्मल ब्यूटेन बता रहा हूँ, राइट, तो उसका क्या है, मुझे 58 है. तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको डाला हुआ है. जैसे उसका 391 केल्विन है, ये जो सभी मैं आपको डेटा बताऊं 39, इसका 370 केल्विन है. आपके बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको डेटा के वजह से समझा रहा हूं. इसका 329 है और इसका 309 है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए यहाँ पे तो मुझे पता है कि भाई ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो इसमें तो वांडरवाल्स बॉन्ड ही है, उसमें वांडरवाल्स और डाइपोल. लेकिन यहाँ सभी लोगों को दिक्कत, सर ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी अपना इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, लेकिन ये जो बनाएगा ना वो अपना डाइमर फॉर्म में बनाएगा, राइट. सो अल्कोहल्स है, देखिए as compared to the alcohols, the OH bond in carboxylic acid is more strongly polarized due to the adjacent electron withdrawing carbonyl group. Therefore, carboxylic acid form a strong hydrogen bond. राइट, देखिए मैं यहाँ पे आपको डाइमर का जो फिगर है वो दिखा रहा हूँ. R है
C है, डबल बॉन्ड O है, H है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, H है, O है, फिर वो C सिंगल बॉन्ड R और डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं वो क्या है, डाइमराइजेशन है, इन वेपर स्टेट, डाइमराइजेशन इन वेपर स्टेट। और अप्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करने पड़ेंगे। सो इट्स रिक्वायर अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। अभी कई बच्चे ऐसा क्वेश्चंस में, सर ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा कोई प्रैक्टिकली आपने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशंस में, राइट। द एक्सिस्टेंस ऑफ सच अ साइक्लिक डाइमर्स इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट molecular mass of acetic acid in solvents like benzene is determined by the measurement of colligative properties such as depression in freezing point is 120 instead of 60। यानी इसका होना चाहिए एसिटिक एसिड का 60, लेकिन मुझे मिल रहा है प्रैक्टिकली 120। तो जैसे अनकॉमन मोलिकुलर वेट आता है तो उसके लिए मैंने वांटा फैक्टर आपने पढ़ा हुआ था। तो यहां से ये मुझे पता चल सकता है कि ये जो है वो प्रेजेंस है, इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका in the liquid state and in the solid state, which is more extensive association of COOH molecules through these intermolecular hydrogen bonding occurs। और ये जो फिगर में दूसरी आपको जो दिखा रहा हूं वो देखिए, अब RCOOH है, यहाँ पे O है, H है, यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सेम वे यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फिगर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच विद द वाटर की मैंने दी हुई है। तो ये जो 3 पॉइंट है हमारी बुक में दिए हुए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर द 3 डिफरेंट टाइटल्स, स्मेल, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी भी कुछ है जिसमें इसमें कई बार मेल्टिंग पॉइंट की भी बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ही स्टॉप हो जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।